So now we go to the other book जिसमें हम ब्यूटीफुल चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं. सबकॉन्शियस माइंड किस तरह वर्क करता है उस पे, है ना. द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड. लाइफ वर्ड का मतलब होता है ग्रोथ, प्रोग्रेस, हैप्पीनेस, सक्सेस, मनी, everything you could think of, the robust health, recovery, healing. So, subconscious mind is godly, है ना. तो भगवान का मतलब ही ये होता है ना, पीस, जॉय, लव, हार्मनी, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, वेल्थ. ये लाइफ वर्ड का मतलब है. तो सबकॉन्शियस माइंड की टेंडेंसी, और इसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया हुआ है. सो हाँ जी, सो हम शुरू करते हैं. एंड रितु खन्ना इज रीडिंग फॉर अस. हाँ जी. हैप्पी होली मैडम. Good morning, ma'am. गुड Thank you मॉर्निंग. so much. Good morning, everyone. Thank you so much, ma'am, for your wishes. थैंक यू. हम्म. पढ़िए. Yes, ma'am. The tendency of the subconscious is lifebird. Over 90% of your mental life is subconscious. So, man and woman who fail to make use of this marvelous power live within very narrow limits. Your subconscious लिव processes विद इन, are लिव. live within, sorry. This marvelous power live within very narrow limits. Your subconscious processes are always liveward and constructive. Your subconscious is the builder of your body and maintains all its vital functions. It is on the job 24 hours a day and never sleeps. It is always trying to help and preserve you from harm. Your subconscious mind is in touch with infinite life and boundless wisdom, and its impulses and ideas are always live word. The great aspirations, inspirations, and visions for a grander and nobler life spring from the subconscious. Your profoundest convictions are those you can't argue about rationally because they don't come from your conscious mind. They come from your subconscious mind. Your subconscious mind, your subconscious speaks to you in intuitions, impulses, hunches, intimations, urges, and ideas, and it is always telling you to rise, transcend, grow, advance, adventure, and move forward to greater heights. The urge to love, to save the lives of others comes from the depths of your subconscious. For example, during the Great San Francisco earthquake and fire of April 18, 1906, invalids and cripples who had been confined to bed for long periods of time rose up and performed some of the most amazing feats of bravery and endurance. The intense desire welled up within them to save others at all costs, and their subconscious responded accordingly. Great artists, musicians, poets, speakers, and writers tune in with their subconscious powers and become animated and inspired. For example, Robert Louis Stevens, before he went to sleep, used to charge his subconscious mind with the task of evolving stories for him while he slept. He was accused he was accustomed to ask his subconscious Accustomed. He was accustomed. he was accustomed to ask his subconscious to give him a good marketable thriller when his bank account was low. Stevens said the intelligence of his deeper mind gave him the story piece by piece like a serial. This shows how your subconscious will speak lofty and wise sayings through you, which your conscious mind knows nothing about. Mark Twain
confined to the world on many occasions. Confided. Sorry. Mark Twain confided to the world on many occasions that he never worked in his life. All his humor and all his great writ, writings, Writings. all his humor and all his great writings were due to were due to the fact that he tapped the inexhaustible reservoir reservoir of his subconscious mind. हम्म, बहुत सुंदर पढ़ रही हो रितु, तुम्हारी इंग्लिश कितनी अच्छी हो गई है, हैट्स ऑफ। थैंक यू मैम। आके तुम्हें प्राइज मिलेगा। थैंक यू मैम। मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था ना ये वाला, 1 साल हो गया होमवर्क दिए हुए। ओके, सो बहुत ब्यूटीफुली डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने ये समझाया हुआ है यहाँ पे, दैट सबकॉन्शियस माइंड 90% लीड है। 90% काम सिर्फ सबकॉन्शियस का होता है, कॉन्शियस माइंड हमारा सिर्फ 10% है। इसका मतलब है सबकॉन्शियस से काम करके देख लेते हैं, कॉन्शियस से काम करके देख लिया, है ना। अब सिर्फ सबकॉन्शियस से काम करना है, यानी कि अपने आप से कनेक्ट होने की जरूरत है। गो इनवर्ड्स इंस्टेड ऑफ आउटवर्ड्स, है ना। कोई चीज अगर आपको पूछनी है, आप अंदर से पूछो। सबकॉन्शियस माइंड कमांड्स पे चलता है। आप कोई कमांड दे दो, थैंक यू बोल के साथ कमांड दे दो, थैंक यू यूनिवर्स दैट आई एम लीडिंग अ ब्यूटिफुल हैप्पी लाइफ, जो भी है, और फाइनेंशियली अबंडेंट लाइफ, मनी इज कॉन्स्टेंटली पोरिंग इन टू माई लाइफ। आप ये कमांड दे दो, सबकॉन्शियस कहता है तथास्तु, सो इट इज, है ना। सो कॉन्शियस, तो उसके बाद इसमें इन्होंने समझाया है दैट हम सबके अंदर, जैसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी बोल रहे हैं, एक मार्वलस पावर है दैट लिव्स विद इन एवरी, हमारे हमारे नैरो लिमिट में हम रहते हैं, यानी कि हम कॉन्शियस माइंड से डिसीजंस लेते हैं। ये चीज हम सही नहीं करते। अगर कॉन्शियस माइंड से डिसीजन, अगर आप सिर्फ 5 सेंसेस के बेसिस पे कोई चीज जज करते हो, लेकिन एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होना हमको बहुत जरूरी है। तो ये उन्होंने यही बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा इतना पावरफुल होता है, इज लाइक गॉड, राइट, एज आई टोल्ड यू दैट जो गॉड है, इट्स लाइफ वर्ड, वो हमको हील कर रहा है, वो हमको रिपेयर कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड को हमने देखा पिछले वाले चैप्टर में, किस तरह से हेट्रो सजेशन ऑटो सजेशन बोल बोल के ऐसी ऐसी बीमारियां, मतलब क्रिपल स्टार्ट्स वॉकिंग, जिनको डॉक्टर ने बोला था कि कभी भी वो वॉक नहीं कर पाएंगे, उनका पूरा नर्वस सिस्टम खराब हो गया है ना। पैरालिसिस हो गया है, पैरालिसिस होना मतलब नर्व्स नहीं काम कर रही है अभी। तो वो पर्सन वॉक करना शुरू कर गया, है ना। लोगों की सर्जरीज में उसमें बताया है कि वो पूरी तरह से ठीक हो गए। किसी पर्सन को पैसा चाहिए था, उनके पास बहुत सारी वेल्थ आ गई। इसका मतलब अंदर के भगवान ने वो चीज की है, इजंट इट। तो जब वो पावर हमारे अंदर है तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें ये जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी टेक्निक बता रहे हैं, इसको अप्लाई करना है। तभी हमने कल बोला था कि सारी एफर्मेशंस हम उसमें डाल देते हैं, सो दैट आप भी उसमें से पिक कर लो जो आपके काम की है। हेल्थ की है, वेल्थ की है, रिलेशनशिप्स की है। अभी इन्होंने चैप्टर्स भी सैग्रीगेट कर रखे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, है ना। मनी के हैं, मनी के तो इन्होंने 3 चैप्टर्स, बिकॉज उनको भी लगता है दैट मनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक इंसान की जिंदगी में। तो मनी का चैप्टर है, रिलेशनशिप के अलग चैप्टर्स हैं, कैरियर सक्सेस के अलग चैप्टर्स हैं। इस तरह हेल्थ के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स हेल्थ के हैं लंबे लंबे, जिसमें उन्होंने बताया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ आज आप कहाँ पे हो हेल्थ के मायने में, आप किस तरह मिरेकल की तरह हील हो सकते हो अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिया, दैट बोल के, और वो स्लीपी ड्राउजी स्टेट में, दैट एवरी सेल, एवरी बोन, एवरी nerve fiber of my being is healing and repairing like a miracle or whatever, and I give thanks for it। अगर आप इतना भी बोल देते हो, है ना, 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को, तो आपकी हीलिंग एंड रिपेयरिंग वैसे ही शुरू हो जाती है। सो दैट इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। सो हम जितना ज्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करेंगे, वो इसीलिए ह्यूमन बॉडी में है। तो इस वजह से लिखा हुआ है ना, जो हमारे इंट्यूशंस, हंचेस, ये जो सारी चीजें हमारे अंदर से आती हैं। कई बार वो पूछते हैं ना कि मैं भी बहुत सबकॉन्शियस से ऐसे बात करके, सो आई जस्ट आस्क अ क्वेश्चन एंड देन आई लेट इट बी, है ना। आई जस्ट आस्क दैट क्वेश्चन एंड आई जस्ट लेट इट बी। जैसे कोई भी ऐसे चीज, सो लाइक इफ आई से दैट आई डेफिनेटली वांट टू बी अ बिलियनर, क्योंकि मेरे बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं कि मुझे
मतलब कुछ सेक्ट ऑफ पीपल है जिनके लिए मुझे करने का बहुत बड़ा डिजायर है, बड़ी चीज करने का डिजायर है। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि मैं बिलियनर, दैट आई रियली, यूनिवर्स से बात कर रही थी कल जब मैं वापस आ रही थी। सो यूनिवर्स से बात कर रही थी ना, सेइंग दैट, और बहुत यहाँ पे बहुत स्पेस दिखता है ना बहुत सुंदर वाला। तो बात करके मैंने कहा, देखो यूनिवर्स, ये काम तो आई रियली, आई आई एम फीलिंग, आई नो दैट मेरे लिए बहुत इजी है बिलियनर बनना, और मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि ये करना है तो बिलियनर बनना है। एकदम से सामने एक बिलबोर्ड आया और उस पे लिखा हुआ था बिलियनर समथिंग, उसके लाइक जैसे इट्स हैपनिंग सून, ऐसे वो वाला जो वर्ड था बिलियनर समथिंग, आज दोबारा से देखूंगी बिकॉज आई एम इन द सेम होटल। सो वो लिखा हुआ था। मैंने कहा चलो, थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट फॉर मी, एंड आई एम सो हैप्पी नाउ आई विल बी एबल टू डू ऑल दोज थिंग्स दैट आई थॉट। है ना, इस तरह से सोचना, इस तरह से थोड़ी सोचना कि नहीं हो रहा है तो आप सबकॉन्शियस हमेशा आपसे बातें करता रहता है। कभी भी कोई भी चीज अगर आपको है, जैसे अगर आप ये पूछते भी हो, जैसे हम लोग नॉर्मली त्योहारों पे कभी भी दिल्ली में नहीं रहते, क्योंकि हम सबके छुट्टी कभी ऐसे होते नहीं है साथ में। तो हर फेस्टिवल, लाइक दिवाली पे भी हम गोवा में थे ऐसे। तो इस बार भी मैं पूछ सबकॉन्शियस से ही पूछा, मैंने कहा टेक अस टू द बेस्ट प्लेस यू थिंक वी शुड गो। एंड फिर ट्रैवल एजेंट से बात की, उसने 4 चीजें बताई। अब मुझे सब वो कह रहा था, "आप बताओ आपको कहाँ पे जाना है, ये दीज आर द 4 प्लेसेस जहाँ पे आपको जाना चाहिए, सो जहाँ आप जा सकते हो बहुत कंफर्टेबली, बिकॉज वी वांटेड टू गो इन इंडिया ओनली, क्योंकि यही 4 दिन थे। तो सबकॉन्शियस ने जवाब दिया उसका, और इतने ब्यूटीफुल तरीके से एकदम से इंस्टा इंस्टा के थ्रू जवाब दिया। उसमें पता नहीं कोई कहवा पी रहा था और उसमें बहुत सुंदर सा कश्मीर लिखा हुआ था, लिटरली इतनी पिक्चर परफेक्ट सी वो इमेज थी। एंड आई गॉट माई हंच, है ना, इसका मतलब सबकॉन्शियस ने मुझे बताया। वो कोई इंसान तो है नहीं, आवाज है कि वो बोले कि ये लो जी, ऐसे कर लो। तो वो हंचेस और इंट्यूशंस के थ्रू काम करते हैं। और मैंने फट से अपने ट्रैवल एजेंट को बताया, मैंने कहा वो फ्रीज कर दो आप पैकेज। कुछ नहीं पूछा कितने का है क्या है, उसने पूरा पैकेज बना दिया, फ्लाइट के टिकट्स आ गए। फिर मैंने उससे पूछा कि हम लोगों को आपको पैसा कितना ट्रांसफर करना है, उसने कहा इतना इतना देना है। अब एनीवे ही इज एन ओल्ड पर्सन विथ मी वर्किंग फॉर लॉन्ग नाउ, मतलब हमारी इंटरनेशनल ट्रिप भी वो ही करता है, तो फटाफट उसको वो किया और फ्रीज कर दिया, लॉक कर दिया। तो इस तरह, तो कंफ्यूजन अगर हम रखेंगे तो और ज्यादा कंफ्यूजन आएगी, बिकॉज जो प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस में होती है वही तो आप हकीकत में देखते हो, है ना। सो इट इज दैट ब्यूटिफुल। सो इसीलिए अपने आप से कनेक्ट होना, परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं कि 10 लोगों से बात करूं, मैं ये करूं, मेरा ये डिसीजन है, मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, शुड आई टेक इट, शुड आई नॉट टेक इट। देयर इज नो रीजन। आस्क योर सेल्फ, यू विल गेट द राइट आंसर। और जितना ज्यादा सबकॉन्शियस पे हम डिपेंड होते जाएंगे, उतनी हमारी लाइफ इतनी इजी होती जाएगी, जो बोलते हैं ना ब्यूटीफुल, इजी एंड एफर्टलेस। सो इसमें 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं आर एल स्टीवेंसन के। हम लोग तो आर एल स्टीवेंसन ही स्कूल में बोलते थे, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, जो बहुत ब्यूटीफुल पोएम्स हमने इनकी लंबी लंबी पढ़ी है, जो हमको मेमोराइज करनी होती थी। तो ये हमेशा अपने सबकॉन्शियस से पूछते थे कि इनको नेक्स्ट वर्क, नेक्स्ट राइटिंग इनकी क्या होनी चाहिए, है ना, जैसे इसमें बताया है। सो और इनको वो हंच मिल जाता था, तो इनको ये पता लग जाता था। वो कहते थे कि जब उनका बैंक अकाउंट ड्राई होने लग जाता था, है ना, जब पैसे इनके पास कम होने लग जाते थे, तो ये अपने सबकॉन्शियस से प्रायर टू स्लीप पूछ लेते थे कि मुझे बहुत अच्छा थ्रिलर कुछ लिखना है, जो बहुत लोगों को एंटरटेन भी करे, ऐसी राइटिंग लिखनी है जो लोगों को एंटरटेन भी करे और खूब मैं पैसे भी बनाऊं इससे। वो ये चीज पूछते थे, और उनको बहुत अच्छे से, सो इसमें लिखा हुआ है, स्टीवेंसन सेड दैट द इंटेलिजेंस ऑफ हिज डीपर माइंड, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, गेव हिम द स्टोरी पीस बाय पीस, बिट बाय बिट इनको वो स्टोरी पता लग जाती थी कि इनको क्या लिखना है, कौन सी कहानी लिखनी है, जो बहुत अच्छी थ्रिलर हो, जैसे बताया ना, जैसे सीरियल की तरह। सो इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड हमको कुछ भी बताने में केपेबल है। फिर मार्क ट्वेन का लिखा हुआ है, कन्फाइडेड टू द वर्ल्ड दैट मेनी ओकेजन्स पे ही नेवर वर्कड इन हिज लाइफ, मतलब उन्होंने अपना कॉन्शियस दिमाग यूज नहीं किया। ही नेवर वर्कड इन हिज लाइफ का मतलब ये नहीं है कि घर बैठे रहते थे बिना कुछ किए। ही नेवर वर्कड इन हिज लाइफ मतलब उन्होंने अपने कॉन्शियस माइंड को बहुत ज्यादा यूज नहीं किया, क्योंकि वो हमेशा हंचेस एंड ट्यूशंस पे ही चलते थे। तो उनके साथ भी था, इन ऑल इज में इसमें लिखाया हुआ है दैट वो इन एग्जॉस्टिबल रिजर्वॉयर जो था सबकॉन्शियस माइंड का, मतलब
ऐसा इनएग्जॉस्टेबल, मतलब जो कभी खत्म ही नहीं होता, आप जितना यूज करोगे उतना ज्यादा बढ़ जाता है ना, इस तरह से। सो वो भी ऐसे यूज करते थे। इसमें बताया हुआ है कि जब 1906 में अर्थक्वेक हुआ था, उसमें ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो जो लोग बिल्कुल हिल चल नहीं पाते थे या बिल्कुल उनकी तबीयत ठीक नहीं होती थी, दे रोज अप लाइक लाइक द फीट ऑफ ब्रेवरी, इस तरह से, और उन्होंने दूसरों की जान बचाई। मतलब जबकि वो टोटली कन्फाइंड टू बेड थे, वो बेड से भी नहीं उठ पा रहे थे, लेकिन जब वो अर्थक्वेक आया तो लोगों को बचाने के लिए वो लोग उठ पड़े, अपनी जान बचाई और उन्होंने और लोगों को भी जान बचाई। इसका मतलब हमारे अंदर कुछ ना कुछ पावर है हीलिंग की, जिसको हम यूटिलाइज शायद कम करते हैं अभी, तभी तो परेशानी है ना, तभी हमारे इनकम्प्लीशन हो रहे हैं। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, जो सुबह प्रेयर हम डेलिबरेटली ये वाली करते हैं ना, जो हमने चूज की, हमने तो बहुत सारी प्रेयर्स एफर्मेशन ये सारी देखी थी, बट हमने अपनी जिंदगी के सारे जो मोटे मोटे मेन मेन एरियाज ऑफ द लाइफ है दैट वी हैव कवर्ड हमारे। सो टुडे इज द डे ऑफ कंप्लीशन, ये हम सबकॉन्शियस में डाल रहे हैं ताकि हमारे ड्रीम्स, हमारे डिजायर्स, हमारी सब कंप्लीट हो जाए, हमारा कुछ भी। हम कंप्लीशन के लिए तो हमने ये जन्म लिया है ना, पिछले जन्म की जो जो इनकम्प्लीट चीजें थी वो इस जन्म में सारे कंप्लीशंस कर लेंगे। हमारे कॉन्फ्लिक्ट थे रिश्ते में, जिसके कारण इस जन्म में भी आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा इधर उधर से, लेकिन हम उनको कंप्लीट कर लेंगे, है ना, बिकॉज रोज सबकॉन्शियस को ये बोलना, टुडे इज अ डे ऑफ कंप्लीशन, टुडे इज अ डे ऑफ कंप्लीशन, है ना, एंड आई गिव थैंक्स फॉर दिस अमेजिंग डे। तो एक कंप्लीट अमेजिंग डे का ही हमको सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग करनी है, ताकि हमारे सारे कंप्लीशंस हो जाए। रिलेशनशिप 100% आप इंजॉय करो, आप हेल्थ 100% इंजॉय करो, है ना। हो सकता है पिछले जन्म में इनकम्प्लीट रह गया हो, हेल्थ में कुछ ऐसी चीज हुई हो, एंड विद दैट वी पास्ड अवे। सो वी आर बॉर्न विथ सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग। जब हम इस जन्म में पैदा हुए हैं तो हमको सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग होगा, बिकॉज पिछले जन्म में वो इनकम्प्लीट रह गया था। बट हमारा रोज हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, टुडे इज अ डे ऑफ कंप्लीशन, टुडे इज अ डे दिस लाइफ आई लिव द लाइफ विच इज विच इज अ लाइफ ऑफ कंप्लीशन, जॉय, लाइफ, ग्लोरी, हैप्पीनेस, दिस इज वॉट वी हैव टू से दैट ये। सो ये कर करके हम आपका हाथ थामे हुए हैं, ओके, तो हाथ हमारा पकड़े रहिए। ये नहीं कि कभी नींद नहीं खुल रही, कभी ये किया नहीं, कभी वो नहीं किया। इस तरह से जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, हम आपको इसीलिए बताते हैं कि ये बहुत साइंटिफिक तरीके से होती है। मैं तो प्योर साइंस हूँ, ठीक है, इसीलिए मुझे वो साइंस का एंगल, एक सेकंड में कोई लाइन पढ़ती हूँ तो वो ना, वो साइंट मेरा वो कॉन्शियस माइंड चल के मुझे बताता है, हाँ साइंटिफिकली ये इस तरह से होता है, साइंटिफिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी इस तरह से होती है। फिर कहाँ से कहाँ इंफॉर्मेशन जाती है ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने बचपन से यही सब पढ़ा लिखा है। इट इज नॉट दैट मैं अभी इवॉल्व हो रही हूँ, अभी मैं सबकॉन्शियस माइंड के रेल्म में, और उसके ऊपर वो कैसे एक्टिवेट करते हैं उसको लिंक करना उसमें, ये सब साइंस में मैं बचपन से ही पढ़ती आ रही हूँ। ये मेरा पूरा इंटरेस्ट एरिया था, तभी मैं इसको पहले आपको डॉक्टर जोसेफ मर्फ का बताती हूँ या रॉन्डा का, फिर मैं उसको साइंटिफिक एविडेंस आपको बताती हूँ, है ना। और ऐसा नहीं है कि आई स्पेंड आवर्स इन स्टडिंग, हाँ किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, बट आई डोंट स्पेंड आवर्स इन स्टडिंग हाउ दिस इज कंटेम्पलेटेड। दिस इज जस्ट सेशंस लेना भी पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड पे डिपेंडेंट है। सेशन लेने के पहले बस मैं वो, चाहे मैं एमएमबीजी का सेशन, एमएमबीजी में तो हम किताबें नहीं पढ़ते, है ना, 1 घंटे प्योरिटी के साथ हम उसमें पढ़ते हैं। उसमें भी मैं यही करती हूँ, मैं आंख बंद करके सुबह सुबह जिम में जब होती हूँ तब पूछती हूँ, जिम में पता नहीं मुझे कितने आइडियाज। सो मैं जिम में होती हूँ ना, पूछती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स दैट यू नो फॉर हेल्पिंग मी टू टॉक द राइट थिंग एट द एमएमबीजी सेशन, जिससे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, जो नीड ऑफ द आवर है, जिसके बारे में मुझे अभी बात करने की जरूरत है। बस मुझे पता ही नहीं होता है कि मैं क्या बोल रही हूँ जब मैं सेशंस में भी होती हूँ, जब मैं ले रही होती हूँ, जैसे व्हेन इट स्टार्ट्स एट 11, आई एम नॉट यूजिंग माई conscious brain at all. मुझे लिटरली कई बार एग्जाम्पल्स आई गिव दे ऑल कम फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड। तो इन इतने महान लोगों के साथ हमने भी ये सीखा है कि जितना ज्यादा आप सबकॉन्शियस को यूज करोगे, रोज सुबह भी जब हम होटल से निकलते हैं वेकेशन पे भी, है ना, सबकॉन्शियस, इतनी स्क्रिप्टिंग 555 कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड को हमने कमांड दे दिया था that this is the best trip of my life. Nature is showing me the best of itself. We are all safe, enjoying to the fullest. There's lot of happiness, love, peace, and harmony. We are eating food at the best places and enjoying the delicacies and the taste of Kashmir. And that is it. हो गया,
है ना? कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है. देयर वाज नो नथिंग. आई डिड डू दैट स्क्रिप्ट थैंक यू बोल के, और बहुत अच्छी जोन में बैठ के, बिकॉज जैसे से आप लिखते हो विजुलाइज करते हो गया. अब वो उससे भी ज्यादा, बिकॉज यूनिवर्स वांट्स टू, सबकॉन्शियस ऑलवेज वांट्स टू गिव यू वन प्लस. ओके, वो एक कदम आगे है. तो आप एक चीज मांगोगे तो आपको दो मिल जाती है, प्रोवाइडेड आप उस पावर पे भरोसा करो जो हम सबके पास है ना? लेकिन बार बार सोचना ये वाला काम नहीं हुआ, ये वाला काम नहीं हुआ, ये वाला काम नहीं हुआ, वो फट से जाके डिपॉजिट हो जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में, फिर बैठे रह जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी. सो इंस्टेड थिंक ऑफ व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर प्रेजेंस, बी इन फ्यूचर प्रेजेंस. ऐसे बेंटिनो मसारो बोलते थे, है ना? दैट इज व्हाट वी नीड टू रियलाइज. अब देखो मार्क ट्वेन और ये आर एल स्टीवेंसन जैसे लोग सबकॉन्शियस को इतना ज्यादा यूज करते हैं, तो हम तो फिर करेंगे ही. ठीक है? So that is all we'll be reading today. And thank you, Ritu. You really read beautifully. बहुत सुंदर आपने पढ़ा, and congratulations.